Again, good afternoon, dear friends. Now, the economics class, and in the economics, we have completed so far up to the producer equilibrium and the supply chapter also. Now, the new chapter, main market forms. In the main market forms, before starting of the topic, that we will discuss something the market and its structure form of the market. Mainly perfect competition market is the first market, then after monopoly market, and then after perfect competition market, monopolistic competition market. So before starting of the perfect competition market, what do mean by market? A simple definition is given here. Market refer to reason. Market refer to that interaction between the buyer and seller of a commodity come in contact with each other. It's no need to physical contact. They can contact via internet also, telephonically also with each other to effect the transaction of the purchase and sale of a commodity. In the simple form, in the lifeline of a modern economic line, मार्केट जो है आज वो लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है. इट इज ए मीडियम टू ब्रिंग टुगेदर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे के साथ आते हैं. दे कैन कंप्लीट देयर डिमांड एंड सप्लाई डे brought together. They are in contact with each other through any means of communication. उनके पास कोई भी communication मोबाइल फोन के थ्रू एक दूसरे से. here the producer हो सकता है, one thing is the seller. they can contact to each other via मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू they can contact to each other. लेटर्स हो सकता है, इंटरनेट है, टेलीफोन है. तो मार्केट क्या है? मार्केट इट ए रीजन है जहां पर वन पर्सन इज बायर एंड वन पर्सन इज ए सेलर, आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर द सेल एंड परचेज एक्टिविटी. मार्केट बिफोर द स्टार्टिंग सम एलिमेंट वी विल डिस्कस हियर रिगार्डिंग द मार्केट. मार्केट के लिए पहले क्या होना चाहिए था? एरिया, बट टुडे इज नो नीड. देन आफ्टर इट्स ए कंपल्सरी, वन इज बायर एंड वन इज सेलर, दोनों होने चाहिए. द थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए. एंड वन थिंग इज आपस में क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए इन द मार्केट, अदरवाइज वी कांट से ए मार्केट. तो मार्केट में मस्ट एग्जिस्ट कंपटीशन अमंग बायर एंड सेलर. सेलर और बायर के बीच में कम से कम एटलीस्ट एक मिनिमम कंपटीशन होना चाहिए. मार्केट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, टाइप्स ऑफ फर्म्स होती हैं ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री. थ्री बेसिक बेसिस ऑन विच डिफरेंट मार्केट आर डिफाइंड. मार्केट में थ्री बेसिस हैं जो मार्केट को डिफाइन करते हैं. नेचर ऑफ कमोडिटी, इट शुड होमोजीनियस. We are talking about here that main forms of market. The one is perfect competition market. These are the main perfect competition market. Then the second is imperfect competition market. If we say that is a one part is perfect and one part is IC, that one is imperfect market. Perfect is only single, it's an individual market, but imperfect competition market is divided into three parts. The one is monopoly, the second is monopolistic competition market, and the one is oligopoly market. One is oligopoly market. Okay. Again I'm telling here the main forms of market. There are the two types. The one is single perfect competition market, it is a single market. Then in imperfect competition market, this type of the market, two types. One is monopoly market, one is monopoly competition market, and one is oligopoly market. So try to understand there are 1 2 3 and 4, total 4 types of market. But one side is perfect competition market, it is a perfect market. And the one side is a three type market: monopoly market, monopoly competition market, and oligopoly market.
Let's the first of all we will discuss about here perfect competition market. It refer to market situation in which जहां पर क्या होता है, ये कौन से मार्केट है जहां पर बहुत ज्यादा large number of buyer and seller operate freely and commodity sales at a uniform constant. पूरी की पूरी जो फीचर्स है वो सारी की सारी इसी में आ गई. रेफर टू मार्केट इन विच जहां बायर और सेलर होते हैं. पहला पॉइंट, they operate freely without any intervention. freely operate कर सकते, anywhere they can go. commodity sales वस्तु बेच सकते हैं. एक commodity sales at a uniform constant, यानी जो प्राइस है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो जितनी फीचर्स है आल्सो यू कैन इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें क्या कहा गया है, इन विच बायर होते हैं, सेलर होते हैं, कमोडिटी होती है, सेल कर सकते हैं एट द यूनिफॉर्म प्राइस पे वस्तु को बेच सकते हैं. फीचर्स, विच आर द फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. द फर्स्ट फीचर्स, large number of seller. The same thing, large number simply state that number of seller in large enough to render a single seller a series total market supply of product is insignificant. मतलब there is no significant of large number or a single seller. यहाँ पर इनफ टू ए रेंडर सिंगल सेलर भी हो सकता है और लार्ज नंबर भी हो सकते हैं. इनसिग्निफिकेंट शेयर मतलब इसके कहना चाहते हैं मार्केट इतनी बड़ी होती है कि कितने भी लार्ज नंबर हो जाए सभी क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होता है. चाहे एक पर्सन हो, चाहे 1000 पर्सन हो, ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल होते हैं. दैट इफ ओनली वन इंडिविजुअल फर्म रिड्यूस और रेजेस इट्स ओन सप्लाई, द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड. उसकी जो प्राइस होती है वस्तु में, यानी मार्केट इतनी बड़ी होती है सभी मिलकर भी प्राइस को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो मार्केट में सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. प्रीवेलिंग का मतलब तो मार्केट में जो प्रचलित होती है वह प्राइस इज वन विच वो सेट थ्रू द इंटरेक्शन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. तो जो प्राइस डिसाइड करेंगे, एक लास्ट का चैप्टर आएगा जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर किसी की प्राइस को क्या करते हैं जी, डिटर्मिनेट करते हैं. ये हो गया सप्लाई और ये हो गया डिमांड. जहां पर व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्राइस. और वह क्वांटिटी की क्वांटिटी कितनी होगी और वहां पर क्या होगी जी, जहां पर डिटर्मिनेट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड ई. ई पॉइंट मीन इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर द डिमांड इंटरसेक्ट सप्लाई. और वहीं पर हमारी क्या डिसाइड होगी, हमारी प्राइस डिसाइड होगी. और जहां प्राइस डिसाइड होगी तो ये काम कौन करता है, इंडस्ट्री. The prevailing market price is one, price वह है which was set through the interaction of market demand, जो डिमांड और सप्लाई से क्या की जाती है, फोर्सेस से सेट की जाती है. दिस इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस. इसको कहा जाता है मार्केट प्राइस कहा जाता है. वन सिंगल सेलर हैज नो ऑप्शन, मैंने कहा ना कि सिंगल सेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है टू सेल व्हाट इट प्रोड्यूस एट दिस मार्केट डिटरमिन प्राइस. द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म इन द टोटल मार्केट इज रेफर टू प्राइस टेकर. यानी कोई भी पर्सन, कोई भी सिंगल सेलर प्राइस को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता. हम यहाँ पे इसलिए मैंने क्या इसके अंदर है प्राइस टेकर. जब आपसे पूछा जाएगा कि इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज प्राइस मेकर और टेकर, तो आप क्या कहेंगे, ये टेकर है जी, क्योंकि मेकर कौन है, इंडस्ट्री है. प्राइस कौन डिसाइड करती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है, और ये मेकर है. This is unique feature of perfectly competition market. Large number of buyer and large number of seller. Seller हमेशा buyer हमेशा ही large होंगे, ध्यान रखना. Individual buyer say total market demand is insignificant. Single also price taker. Large number indicate ineffectiveness of single seller. Price taker होते हैं. एक अच्छा point है features homogeneous product. मतलब जो प्रोडक्ट इसमें बेचा जाता है, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो दैट एवरीवेयर इज फाउंड होमोजीनियस नेचर. होमोजीनियस मीन इक्वल सेंस, दे आर आइडेंटिकल ऑल शेप, क्वालिटी से, कलर से, साइज से, वेट से, डिजाइन से वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं. डिफरेंट मार्केट इक्वल इन द आईज ऑफ द बायर.
Buyer cannot distinguish between the product of one firm and that of another. He become indifferent. Buyer cannot distinguish. Buyer क्या नहीं कर सकता यहाँ पे? distinguish नहीं कर सकता. All are equal point होते. He become indifferent as to firm from which he buys. The implication of this feature, since buyer treat product identical, they are not ready to pay a different price. कोई भी for the product of any firm, कोई भी firm, कोई भी product, कोई भी buyer यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, किसी भी चीज में डिफरेंट नहीं कर सकता. इसलिए वो अगर पे करना चाहता है एक्स्ट्रा तो वो भी नहीं कर पाता. Buy treat product as identical same, they are not ready to pay different price. वो different price पे करने के लिए भाई तैयार नहीं होता. बिल्कुल product is found in the homogeneous nature, all the same. Attempt by a firm to sell its product, higher prices will fail. अगर कोई भी फर्म ऐसा ट्राई करती है तो वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी. हायर प्राइसेस विल फेल, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट होती है. दिस इज ए कांस्टेंट प्राइस. यू कैन मेक ए परफेक्ट कंपटीशन. पी फॉर प्राइस, और यहाँ पर प्राइस पर आप एक वस्तु बेच सकते हैं, यहाँ पे आप 1000 वस्तु बेच सकते हैं. इट इज ए कांस्टेंट. यहाँ पर ए आर जो हमारा रहेगा प्राइस का, वो हमेशा क्या रहेगा? टी आर के ए आर एंड एम आर क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. ए आर एंड एम आर. व्हेन द ए आर इज कांस्टेंट, एम आर इज आल्सो कांस्टेंट. इफ यू ट्राई, अगर आप प्राइस ये जो फिक्स कर दी है, आप इससे न तो अगर ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो आपके जो बायर हैं, जो खरीदने वाले, दे शिफ्ट दैट ऑन टू द अदर शॉप, वो दूसरी दुकान पे चली जाएंगे. अगर आप इससे कम बेचना पसंद करोगे तो यू विल गेट लॉस. मान लो एक दुकानदार ए है, वो एक प्राइस 10 रुपए डिसाइड, अगर वो 9.5 रुपए पे किसी चीज को देगा तो ही विल गेट ए लॉस. उसको क्या लगेगा? लॉस लगेगा. अगर वो 11 लेगा तो क्या हो जाएगा? जो भी बायर होंगे दे विल शिफ्ट टू द अदर शॉप, और दूसरी दुकानों पे चले जाएंगे. इसलिए प्राइस में आप क्या नहीं कर सकते? कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. कई बार आपने ब्रांडेड वस्तुओं के प्राइसेज है तो आप दिल्ली से ले, चाहे आप जींद से ले, चाहे आप कैथल से ले, चाहे करनाल से ले, चाहे चंडीगढ़ से ले, वो प्राइस हमेशा क्या मिलते हैं? आपको सेम मिलते हैं. Homogeneous product feature ensure uniform price for the product. All the firms in the industry, सभी क्या पाए जाते हैं? इक्वल पाए जाते हैं. First to check the 2 point and the meaning of the market. Then I will give in another video the free entry and exit of the firm.